آج سے ٹھیک 4 سال قبل متحدہ قومی موومنٹ MQM کے بانی الطاف حسین کی ایک تقریر ملک کے ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی۔ اس تقریر کے الفاظ تو عدالتی حکم کی وجہ سے شائع نہیں کیے جا سکتے، تاہم اس تقریر کے بعد ہی یہ تاثر پیدا ہوا کہ اب ملک کے سیاسی منظرنامے میں الطاف حسین اور ان کی MQM کی فی الحال کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس تقریر کے بعد نہ صرف ریاست کی جانب سے الطاف حسین کی تقاریر نشر و شائع کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، بلکہ خود ان کی اس MQM کے بھی ٹکڑے ہو گئے جو کسی زمانے میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی اور 1988 کے بعد پاکستان کے وفاق میں قائم ہونے والی کسی بھی حکومت کا ان کی حمایت کے بغیر قائم ہو جانا یا وجود برقرار رکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا الطاف حسین اور MQM کو عروج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے عطا کیا تھا جس پر لان تان نے انہیں اس حالیہ زوال سے دوچار کر رکھا ہے، یا پھر اس عروج و زوال میں کوئی حصہ شخصیت پرستی، ذاتی انا اور آمرانہ طرز سیاست کا بھی ہے جس کے سحر سے MQM اور الطاف حسین دونوں ہی کبھی آزاد دکھائی نہیں دیے؟ یہ پوڈ کاسٹ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس فوجی بغاوت کو ملک بھر میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں تھی اور ضیاء حکومت سیاسی حمایت اور پذیرائی کی متلاشی تھی۔ تب تک قیام پاکستان کے وقت اردو بولنے والوں کی اکثریت کو ہندوستان سے آ کر کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں آباد ہوئے 30 برس ہو چکے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کے بجائے کوٹا سے ملازمت اور تعلیمی اداروں کے داخلوں میں حصہ ملتا اور قابلیت کی بجائے رہائشی علاقے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ کوٹا سسٹم رائج کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں چونکہ تعلیم یافتہ اور زیادہ قابل آبادی رہتی ہے، اس لیے تمام داخلے یا ملازمتیں کراچی یا سندھ کی شہری آبادی میں بٹ جاتی ہیں اور ملک کے دیگر علاقوں کے لوگ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والے اختر رضوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز افراد اس وقت شہری حلقوں میں بطور مدبر اور دانشور اپنا علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی کوٹا سسٹم کو قابلیت کے خلاف ناانصافی سمجھتے تھے اور اس کے شدید مخالف تھے۔ اس شہری آبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی آبادی کی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں۔ دراصل اختر رضوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز شہریوں نے ہی کراچی کے نوجوانوں کو اپنی نمائندہ سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا اور تنظیم سازی کے لیے سیاسی مواد اور تربیت فراہم کرنے میں بھی سب سے اہم کردار ادا کیا۔ 17 ستمبر 1953 کو اسی کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے مکمل کی۔ سن 1970-71 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم میں شمولیت اختیار کی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراً بعد وہ خود بھی پاکستانی فوج کی بلوچ ریجیمنٹ میں شامل ہو گئے۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا، تاہم شہری سندھ کے احساس محرومی و مایوسی اور جواب میں انتہائی پرکشش نعروں کے سہارے طاقت اور تشدد پر مبنی مخالفت کے باوجود بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کرتی یہ تنظیم شہر کے کئی تعلیمی اداروں میں جا پہنچی۔ الطاف حسین اس دوران کئی بار جمعیت کے براہ راست تشدد کا نشانہ بنے اور پھر جب 3 فروری 1981 کو ان کی تنظیم کو تعلیمی اداروں سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا تو دیگر ساتھیوں کے فیصلے کے تحت اس تنظیم نے شہری علاقوں میں سرگرمیوں کا آغاز کیا، جہاں اسے خوب مقبولیت اور پذیرائی ملنے لگی۔
MQM की जानिब से कराची के पहले मेयर और फिर पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमा समझे जाने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार ने गुफ्तगू में जनरल ज़िया की फौजी हुकूमत की जानिब से अल्ताफ हुसैन की सरपरस्ती को तस्लीम किया। उन्होंने बताया कि जमीयत के थंडर स्क्वाड नामी मुसल्ला बाजू ने यूनिवर्सिटी समेत करीबन तमाम तालीमी इदारों में हमारा दाखिला बंद कर दिया तो 5 फरवरी को अल्ताफ भाई ने फेडरल बी एरिया में तारिक मुहाजिर के घर होने वाले इजलास में कहा कि हम जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पीछे जनरल ज़ियाउल हक हैं, उनके साथ रियासत की ताकत है। उन्होंने कहा कि वो APMSO को उसी इजलास में ख़त्म करते हैं क्योंकि वो तशद्दुद की सियासत में नहीं जा सकते। अगर ऐसा किया तो उन्हें डर था कि उनके सारे कारकुनान और रहनुमा मारे जाएंगे। मगर इजलास के शुरका के जज्बाती तबादला ख्याल के बाद APMSO को शहरी इलाकों में ले जाने का फैसला हुआ। सबसे पहला यूनिट अफाक अहमद ने लांडी में बनाया। यही अफाक अहमद आगे चलकर अल्ताफ हुसैन के सबसे बड़े मुखालिफ और MQM हकीकी के सरबराह बने। फारूक सत्तार के मुताबिक 1983 में अल्ताफ हुसैन अमेरिका चले गए और जब 18 मार्च 1984 को APMSO की क़यादत ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट या MQM बनाने का ऐलान किया तो अल्ताफ हुसैन मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन अजीम अहमद तारिक, सलीम शहजाद और तारिक जावेद जैसे इब्तदाई साथी अल्ताफ भाई से राब्ते में थे। मार्च 1985 में कराची के वस्ती इलाके नाजमाबाद की चौरंगी पर ट्रैफिक के एक हादसे में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक तालिबा बुशरा जैदी की जान चली गई। तालिबा की हलाकत पर शुरू होने वाला एहतजाज शाम होने तक लसानी रंग इख्तियार कर गया और उर्दू बोलने वाले शहरियों का एहतजाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेशतर पश्तून मालिकान के खिलाफ महाज की सूरत में ढल गया। इसी असना अल्ताफ हुसैन अमरीका से वापस आ गए। फारूक सत्तार ने बाज़ तज्ज़िया निगारों की ये राय तो यकसर मुस्तरद कर दी कि MQM को मार्शल लॉ ने पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए बनाया था, मगर वो ये ज़रूर तस्लीम करते हैं कि कोई नरम गोशा ज़रूर था। वो कहते हैं बनाया जनरल ज़िया ने नहीं था, मगर मार्शल लॉ दौर में हम परवान चढ़ रहे हैं तो ये खुली गम्माजी है कि सारी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब था। वहाँ 5 लोग जमा हो जाएं तो दफा 144 लग जाएगी और हम कॉर्नर मीटिंग इलाकों में कर रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। उनके बकौल पोस्टर लगाने के जुर्म में डॉक्टर इमरान फारूक, बदर इकबाल और एहसन खान शेरवानी गिरफ्तार हुए थे, मगर 2 दिन बाद जमानत पर रिहा होकर आ गए। रिहाई से कबल उनसे सिर्फ इतना दरियाफ्त किया गया कि आया उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन से तो नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं कि पाकिस्तान की गलीज सियासत को इतने करीब से देखने के बाद इस स्टेज पर भी मैं ये तस्लीम ना करूं कि मार्शल लॉ ने नरम गोशा दिया तो मैं इंसाफ नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि जगह दी गई थी। APMS हो या MQM, तालीमी इदारों और इलाकों में जब दोनों तंजीमों का जादू सर चढ़कर बोलना शुरू हुआ तो महल्लों में कॉर्नर मीटिंग्स, जलसों और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। एक मुजाहिरा बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हुआ जहां अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान का कौमी परचम जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फौजी अदालत से 9 माह और शायद 5 कोड़ों की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जब अर्बन सिंध में लसानी सियासत शुरू हुई और मुखालिफ जमात इस्लामी को जबरदस्त सियासी नुकसानात का अंदाजा हुआ तो दोनों तंजीमों में टर्फ वॉर यानी इलाका गिरी का आगाज हुआ। इसी दौरान सोहराब गोट के इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की। सोहराब गोट पश्तून अक्सरियती आबादी का इलाका था और इस ऑपरेशन के फौरन बाद महाजिर अक्सरियती आबादियों अलीगढ़ कॉलोनी और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग के पुरअसरार वाक़यात हुए जिनमें दर्जनों अफराद मारे गए और इसे सोहराब गोट ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल समझा गया। इसके बाद पश्तून और महाजिर आबादियों में शदीद लसानी कशीदगी फैल गई जिसका अल्ताफ हुसैन और उनकी MQM को जबरदस्त फायदा हुआ और डर और खौफ की ये फिजा दरअसल MQM को मजबूत करती चली गई। मकबूलियत मिली तो MQM का तंजीमी ढांचा मुनज़्ज़म किया गया। यूनिट और सेक्टर की सतह पर तंजीम साजी में सबसे अहम किरदार डॉक्टर इमरान फारूक ने अदा किया। इमरान फारूक ही वो रहनुमा थे जिन्होंने पार्टी के आइन में वो तबाहकुन शिक शामिल की जिसके तहत तहरीक के सरबराह अल्ताफ हुसैन किसी को जवाबदेह नहीं रहे बल्कि हतमी फैसले का इख्तियार भी उन्हें ही दे दिया गया। ज़िया दौर में सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात होते थे तो नुमाइंदगी से महरूम आम लोगों को MQM के जरिए अपनी सियासी नुमाइंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। MQM ने माहौल का फायदा उठाया और 8 अगस्त 1986 को निश्तर पार्क में एक बड़ा जलसा करके ताकत के मुजाहरे का फैसला किया।
गली मोहल्लों में जलसों और मुजाहिरों के जरिए निश्तर पाक के जलसे की जबरदस्त तशहीर की गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2 घंटे तक शोला बयानी करने वाले अल्ताफ हुसैन ने उस जलसे में वो जौहर दिखाए कि लोगों को आज भी PIA बड़े भाई की एयरलाइन के तौर पर याद है। तमाम लोगों को शोला बयानी पर कुदरत रखने वाले अल्ताफ हुसैन में अपना एक जारे और ज़बरदस्त तर्जुमान दिखाई दिया। जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं कि निश्तर पाक जलसे की कामयाबी ने ही अल्ताफ हुसैन के लिए 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की ऐसी राह हमवार की जिसका अंदाज़ा तो शायद खुद अल्ताफ हुसैन और उनकी तंजीम को भी नहीं रहा होगा। इन इंतखाबात में फ़कीदुल मिसाल कामयाबी के नतीजे में MQM ने तकरीबन तमाम नशस्तें हासिल की और डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के पहले मेयर मुंतखब हुए। सन 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो अल्ताफ हुसैन की MQM न सिर्फ कराची और हैदराबाद की तमाम नशस्तों पर फाते रही बल्कि सिंध के कई दीगर शहरी इलाकों में भी नशस्तें जीतने में कामयाब रही। फिर हैदराबाद में हैदर बख्श जतोई चौक पर होने वाले जलसे में जाते हुए अल्ताफ हुसैन के काफिले पर सोहराब गोट के करीब फायरिंग का वाकया हुआ जो हमेशा एक मुअम्मा रहा। मज़हर अब्बास बताते हैं पुरअसरार इसलिए कि वहाँ बाज ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद थे जिन्हें उस वक्त वहाँ नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं कि इस वाक़ये में हैदराबाद में तकरीबन 250 अफराद हलाक हुए और बाद में कराची में भी फायरिंग के वाक़यात में तकरीबन 150 के लगभग लोग मारे गए, मगर इस कत्ले-आम की वजूहात कभी सामने नहीं आ सकीं। सन 1988 के इंतखाबात में शहरी सिंध पूरा MQM और दही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया और दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें तश्कील दी। मकबूलियत की इस इंतहा पर अल्ताफ हुसैन की MQM बिला शिरकत गैर कराची के सियासी, बल्दियाती, इंतजामी और माली मामलात की मालिक बन गई। 17 अगस्त 1987 को तैयारे के हादसे में जनरल ज़िया की हलाकत के बाद कराची से ताल्लुक रखने वाले जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बने, मगर नौ मुंतखब वजीर आज़म और पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो से उनके ताल्लुकात कभी बेहतर दिखाई नहीं दिए। मज़हर अब्बास बताते हैं कि असलम बेग के ज़माने में बेनज़ीर अल्ताफ हुसैन की हिमायत से महरूम हुई और फिर अक्टूबर 1989 में ईवान में अदम एतमाद की तहरीक से बामुश्किल बचने वाली उनकी हुकूमत अगस्त 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ कर दी। तज्जिया निगारों के मुताबिक बेनज़ीर ने उसका जिम्मेदार फौजी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर खुफिया इदारों और जनरल बेग को करार दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनरल बेग ने सियासी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करके पैसे और ताकत के बल पर उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई। कहानी को आगे बढ़ाते हुए MQM हकीकी के सरबराह आफाक अहमद ने जारहाना अंदाज से बताना शुरू किया। 1989 की बात है जब असलम बेग आर्मी चीफ थे। उन्होंने मदऊ किया तो मैं, अल्ताफ हुसैन और यूसुफ एडवोकेट यूनुस हबीब के घर गए थे। वहाँ असलम बेग ने अल्ताफ हुसैन से कहा, भाई कौमी धारे की सियासत कीजिए, अब आप लसानी सियासत को खैर बाद कह दीजिए, आपका आगे मुस्तकबिल है। आफाक अहमद के मुताबिक जनरल बेग की इस बात पर अल्ताफ हुसैन ने रस्मन कहा कि जनाब हमारे पास इतने वसाइल कहाँ। तो असलम बेग ने यूनुस हबीब से कहा और यूनुस हबीब ने फौरन पैसे दे दिए। आफाक अहमद ने दावा किया कि वापस आते वक्त उन्होंने गाड़ी में बैठते ही अल्ताफ हुसैन से कहा, आपने कौमी धारे की सियासत की बात की है तो अगर आप मुहाजिर तहरीक को ख़त्म करके कौमी धारे की सियासत किसी और नाम पर करना चाहते हैं तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। मज़हर अब्बास समेत कई तज्जिया निगारों की राय है कि फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर अपने हामियों पर मुश्तमिल हिज़्ब इख्तिलाफ का ब्लॉक कायम रखना चाहती थी। जनरल बेग के ज़माने में ही पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और दीगर को मिलाकर कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टी बनवाई गई। मुल्क भर में इसके जलसे हुए और कराची में तो शाहराए कायदीन पर बहुत ही बड़ा जलसा हुआ जिसमें अल्ताफ हुसैन का जादू भी बोलता दिखाई दिया। बाद में जतोई साहब ने तस्लीम किया कि असलम बेग सदर बनना चाहते थे और जतोई साहब को तासुर था कि वजीर आज़म वो होंगे। जब सदर गुलाम इसहाक खान ने असलम बेग को बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी तो फौजी क़यादत तब्दील हुई और जनरल आसिफ नवाज फौजी सरबराह मुकर्रर हुए। उस वक्त तक अपनी पार्लिमानी ताकत के बल पर खड़ी अल्ताफ हुसैन की MQM को अपनी सियासी अहमियत और ताकत का अंदाज़ा तो हो चुका था, मगर इसके असल मंबा यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत का अंदाज़ा लगाने में शायद कहीं चूक हो गई।
الطاف حسین اور MQM نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں بہت سے وار ارادی یا پھر غیر ارادی طور پر غلط بھی ہوئے۔ ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈھی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ پاکستان میں طاقت کے سرچشموں کے قریب رہنے والی ایک شخصیت کے مطابق ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے عمران فاروق کو کہا کہ تم بات کر لو۔ انہوں نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف حسین مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کس رہنما کو MQM میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کا مشورہ دیا؟ یہ آپ جلد ہی جان پائیں گے پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں۔ اس پوڈ کاسٹ کے اسکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رضوی۔ ان کا تحریر کردہ آرٹیکل آپ BBC Urdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔